Hello everyone, welcome back to our YouTube channel CS Insight and this is CS Stuti Mahajan. As we all know, GST के अंदर amnesty scheme आई हुई है. GST amnesty scheme किसके लिए है? For GSTR 9 annual return, GSTR 4, GSTR 10 and for the revocation. तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे GST amnesty scheme and revocation. Let's discuss. CBIC amnesty scheme to revoke GST registration cancellation. The Central Board of Indirect Taxes and Customs has introduced an amnesty scheme for the taxpayers seeking to revoke the cancellation of their GST registration. तो अभी हम इसका एक ओवरव्यू लेते हैं. The GST Council has recommended an amnesty scheme for those whose registration has been cancelled due to non-filing of their returns. तो अगर आपने अपने रिटर्न्स फाइल नहीं किए हैं जिसकी वजह से आपका जीएसटी का नंबर कैंसिल हो गया है, तो उस केस में आप इस amnesty scheme का बेनिफिट उठा सकते हो. This scheme allows eligible persons to file an application for revocation of cancellation within a specified time frame subject to certain conditions. CBIC notification on amnesty scheme. CBIC has issued notification number 3/2023 to introduce an amnesty scheme applicable for the registered persons whose registration was cancelled for non-filing of their returns and who failed to apply for revocation within the prescribed time limit. आप लोगों ने अपने रिटर्न्स टाइम पे फाइल नहीं की तो उस केस में आपका जो नंबर है वो कैंसिल हो गया, क्योंकि उसके अंदर आपको पता है जीएसटी के अंदर इस समय कितनी स्ट्रिक्टनेस है. एक तो सिक्वेंशियल फाइलिंग है, आप पहले जीएसटी 1 फाइल करेंगे, देन आप जीएसटी 3B फाइल करेंगे, उसके बाद ही आप नेक्स्ट मंथ के जीएसटी 1 के ऊपर जा पाओगे. और अगर आपने कंसिक्वेंटली कुछ रिटर्न्स जो है वो फाइल नहीं की तो आपको पता है कि आपका नंबर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा. तो अगर आपका नंबर कैंसिल कर दिया जाता है कि नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स की वजह से, तो उस केस में आपको एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर रेवोकेशन के लिए अप्लाई करना है. और अगर आपने उस रेवोकेशन के लिए भी अप्लाई नहीं किया तो उस केस में आप इस एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हो. The scheme prescribes a special procedure which is to be followed to revoke cancellation of registration until June 30th, 2023. It is the application for revocation is to be submitted only after filing the pending returns which were due up to the effective date of cancellation of registration and paying any tax, interest, penalty and late fees. अगर आप लोगों ने अपने रिटर्न्स फाइल नहीं की थी, उसकी वजह से आपका जो नंबर है वो कैंसिल हो गया और आपने रेवोकेशन भी फाइल नहीं की, तो उस केस में आप इस एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हो. ये एमनेस्टी स्कीम आपके लिए ओपन है टिल 30 जून 2023 तक. मींस 30 जून 2023 तक आप रेवोकेशन की एप्लीकेशन जो है वो फाइल कर सकते हो. बट रेवोकेशन की एप्लीकेशन आप तभी फाइल कर पाओगे जब आप अपनी जितनी भी पेंडिंग रिटर्न्स है वो फाइल कर दो. उसके अंदर जो भी आपका टैक्स है, इंटरेस्ट है, पेनल्टी, लेट फीस सारी अगर आप पे कर देते हो कैंसिलेशन तक, तो सारा का सारा टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस पे करके रिटर्न्स फाइल कर देते हो, तो उस केस में आप रेवोकेशन की एप्लीकेशन जो है वो लगा पाएंगे. CBIC Central Tax Notification 3/2023 dated 31st March amnesty scheme to revoke GST registration cancel. तो इसके अंदर है who can avail this amnesty scheme. The amnesty scheme is available to any person whose registration has been cancelled under Clause B or Clause C of Section 192 of the CGST Act up to 31st December 2022 and who has failed to apply for revocation of cancellation within the time prescribed specified in Section 30 of the CGST Act 2007. क्लियरली उन्होंने क्या बोले, 31 दिसंबर 2022 तक भी अगर आप लोगों की रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हुई है, ठीक है, तो उस केस में आप इस एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हो. Additionally, taxpayers whose appeal against the order of cancellation of registration or the order rejecting the application for revocation of cancellation of registration has been rejected. अगर अपील की, अगर वो आपकी अपील पे रिजेक्ट हुई है ड्यू टू फेलियर टू adhere to the time limit specified in Section 30, can also avail the benefits of this amnesty scheme as per explanation in this said notification. तो वो लोग भी इस अपील का, इस amnesty scheme का बेनिफिट उठा सकते हैं. How to avail this amnesty scheme? तो सबसे पहले amnesty scheme को अगर आप अवेल करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, The eligible persons must follow the prescribed procedure, जिसके अंदर क्या है, file for revocation of cancellation of registration after furnishing all pending returns up to the effective date of cancellation of registration. जिस दिन आपके registration cancel हुई है उस दिन तक जितनी भी आपके returns pending थी, ठीक है, वो सारे के सारे returns जो है वो फाइल करो.
अब रिटर्न्स को फाइल कैसे करोगे आप? मेक पेमेंट ऑफ द टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस एक्सेट्रा इफ एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव पेंडिंग रिटर्न्स। तो रिटर्न्स को फाइल करते हुए आपका जो भी टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस बनता है वो सब भी पे करो। सबमिट द एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द अबव फॉर्मेलिटीज। टैक्स पे करके, रिटर्न्स फाइल करके आप अपने रेवोकेशन की एप्लीकेशन जो है वो लगा दो। प्लीज नोट दैट नो फर्दर एक्सटेंशन विल बी गिवन फॉर फाइलिंग द एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सच केसेस। आपको यही वाली जो एमनेस्टी स्कीम जो ओपन हुई है इसी का बेनिफिट लेना है, इसके बाद कोई एक्सटेंशन जो है वो नहीं दी जाएगी। तो डेडलाइन टू अवेल द एमनेस्टी स्कीम फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, डेडलाइन क्या है इसकी? द लास्ट डे टू फाइल रेवोकेशन अंडर दिस एमनेस्टी स्कीम इज 30 जून 2023। और ये जो डेडलाइन आपको दी गई है ये एक सुटेबल टाइम है जो कि एलिजिबल टैक्स पेयर्स जो कि अपने रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई कर ले और इस स्कीम का बेनिफिट उठा ले। ठीक है, तो क्लियरली है, क्योंकि मेरे पास कई सारी क्वेरीज आई थी, कई लोगों के ऐसे जिनके रिटर्न्स नहीं उन्होंने टाइमली फाइल की, तो उस केस में उनका जो नंबर है वो कैंसिल हो गया, और नंबर कैंसिल हो गया, उन्होंने रेवोकेशन भी अप्लाई नहीं किया। तो अगर अब ये एमनेस्टी स्कीम आई हुई है तो आप इस एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हो। इस एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट आपको कैसे उठाना है? सिर्फ वही टैक्स पेयर्स जो है इस एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं जिनका नंबर कैंसिल हुआ था नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स की वजह से और उन्होंने रेवोकेशन टाइम पर फाइल नहीं किया। उस केस में आपको क्या करना है? अपने रिटर्न्स को फाइल करना है। जिस दिन तक आपका नंबर कैंसिल हुआ वहां तक आपको अपनी सारी के सारे रिटर्न्स जो अपडेट करनी है। रिटर्न्स को अपडेट करते हुए आपका जो भी टैक्स उसके अंदर बनता है, इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी, वो सब आपको पे करना है। और पे करने के बाद आपको क्या करना है कि इसकी एप्लीकेशन जो है रेवोकेशन वो आपको लगानी है। और लास्ट डेट इसके लिए क्या है? 30 जून 2023। 30 जून से पहले पहले आपको ये सब काम करना है एंड मेक इट श्योर 30 जून से ये एक्सटेंड नहीं होने वाला है। So this is all for the day. Thank you for watching this video. जो भी ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जिनका भी नंबर कैंसिल हुआ है उनके लिए ये गोल्डन चांस है एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट लेते हुए वो अपना नंबर जो है वो रिवोक करवा सकते। थैंक यू।